Good morning, students. Welcome to the third session of the poem Voice of the Unwanted Girl, written by Sujata Bhatt. As we have done, that the poem is an attack on the sex determination and female feticide and infanticide. The poem strongly opposes the patriarchal social structure where the callous and inhuman behavior of people, of parents, is responsible for female feticide and infanticide. The poem deals with the social problem of female feticide. It critiques the patriarchal social structure where women are denied their rights, they are considered subordinate or inferior to men, and that is why a girl child is not preferred in comparison to a boy child. The poem is written in the form of an address. संबोधन के फॉर्म में ये पोएम लिखी गई है. And the speaker of the poem is the unborn female fetus. The speaker says that she is the one who was killed when her mother learned that she was going to be a girl child. She is very much hurt by the realization that her mother, who herself is a woman, does not want a girl child as her offspring. The child is now dead, but voice of the girl child complains to her mother, questions the inhumanity and horror of female feticide or infanticide. In our previous videos, we did that the poet presents in the poem the pain of the female fetus when she learns that she is not wanted by her mother. And when her mother comes to know of her gender, she decides to terminate her pregnancy. And to kill the baby, the doctors have to give her injection. We can feel the pain and grief of the baby who is aware of the fact that it was her mother who has decided to get her baby killed. The voice of the unwanted girl child tells that before her death she could hear the sound of the rain, the wind, and the traffic of the city of Mumbai. But just because she was a girl child, no one wanted her to take birth. No one wanted her to live her life. In fact, no one allowed her to take birth. बच्ची कहती है कोई भी ऐसा नहीं चाहता था कि मैं जन्म लूं और बाहर की दुनिया देखूं. कोई भी ऐसा नहीं चाहता था. No one wanted, she repeats, no one wanted to touch me. जन्म लेना तो बहुत दूर की बात है. No one wanted to touch me. कोई मुझे छूना भी नहीं चाहता था. Nobody wanted to touch me. यहाँ पर बच्ची बहुत ही कारुणिक तरीके से अपनी मदर से ये कंप्लेन कर रही है. She is pouring out her agony, her pain. No one wanted to touch me except later in autopsy room when they knew my mouth would not search for anything. Except later, सिवाय बाद में जब ऑटोप्सी रूम में मुझे लेकर गए. ऑटोप्सी रूम में मुझे छुआ गया सिर्फ, और तब भी कब छुआ? When they knew my mouth would not search for anything. कि जब उन्हें पता लगा कि अब मेरा माउथ किसी भी चीज को सर्च नहीं कर रहा होगा, किसी भी चीज की इच्छा नहीं कर रहा होगा. We all know that कि जब बेबी इज इन मदर्स वूम, जो भी उसको खाने का पीने का जो भी कुछ होता है मदर के थ्रू उसके माउथ में जाता है. लेकिन अब क्योंकि मैं शांत हो चुकी थी, मीन्स मेरी मृत्यु हो चुकी थी, मुझे इंजेक्शन देके मार डाला गया था, और जब उन्हें ये कंफर्म हो गया था कि अब मेरा माउथ
किसी खाने पीने की चीज को नहीं तलाशेगा या किसी भी चीज को नहीं तलाशेगा, मीन्स मेरी मूवमेंट्स शांत हो गई है, तब मुझे उन्होंने छुआ ऑटोप्सी रूम में। ऑटोप्सी होता है एक मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड पर्सन टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ। जब बायोप्सी तो हम लिविंग जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी करते हैं, ऑटोप्सी डेड पर्सन की करते हैं कि उसकी जो डेथ हुई है उसके कॉजेज, उसके रीजंस जानने के लिए, क्योंकि यहाँ भी जो डॉक्टर्स हैं उन्हें भी अपना रिपोर्ट रेडी करना होगा, उन्हें दिखाना होगा कि इस बच्चे की डेथ कैसे हुई। तो ऑटोप्सी रूम में ये सब परीक्षण किया गया और सिर्फ तभी मुझे हाथ लगाया गया। No one wanted to touch me except later in the autopsy room when they knew my mouth would not search for anything and my head could be measured and bent, cut apart. उन्होंने मुझे कब छुआ डॉक्टर्स ने? जब उन्हें ऑटोप्सी रूम में मेरा परीक्षण करना था, जब उन्हें ये कंफर्म हो गया दैट माय माउथ वुड नॉट सर्च फॉर एनीथिंग। अब मेरे मेरे मुख को, छोटे से मुख को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, और उन्होंने मुझे तब छुआ व्हेन माय हेड कुड बी मेजर्ड, कि मरने के समय मेरे सर का, मेरे बॉडी का साइज क्या था ये सब उन्हें रिपोर्ट में लिखना था, क्योंकि कि कितना डेवलप्ड हो चुका था बच्चा। जब मेरे सर को मेजरमेंट उसका लेना था, लिया जा सकता था कि कितना साइज है, वो चेक किया जा सकता था। और जब मेरी बॉडी को या मेरे सर को बेंट, तोड़ना, काटना संभव था, और जब मेरे सर के साइज को नापा जा सकता था, और जब मुझे तोड़ा मरोड़ा काटा जा सकता था, काट कर अलग किया जा सकता था, सिर्फ तभी उन्होंने मुझे छुआ ऑटोप्सी रूम में। और मेरी हालत कैसी थी? आई लुक्ड लाइक अ स्लाइस्ड पोमीग्रेनेट। बहुत ही मार्मिक चित्रण बच्ची कर रही है कि उस फीमेल जो फीटस था उसकी हालत कैसी थी, कैसा दिख रहा था, मैं कैसी दिख रही थी। आई लुक्ड लाइक स्लाइस्ड पोमीग्रेनेट। फ्रूट, अनार, पोमीग्रेनेट इज अनार का जो फल होता है उसे पोमीग्रेनेट कहते हैं। स्लाइस्ड, जिस कटे हुए अनार की भांति मैं वहां पर पड़ी हुई थी। द फ्रूट यू नेवर टच्ड। बच्चे की देखिए यहाँ पर कंप्लेन कि वो फ्रूट जिसे तुमने कभी नहीं छुआ। डॉक्टर्स, नर्सेस, कंपाउंडर्स ने फिर भी मुझे हाथ तो लगाया ऑटोप्सी रूम में मेरे परीक्षण के लिए, या मेरे शरीर को या मेरे सर को काटने के लिए, उसे नापने के लिए, उसका साइज लेने के लिए, चाहे किसी भी वजह से डॉक्टर ने मुझे हाथ लगाया, और मैं एक कटे हुए अनार की तरह, एक कटे हुए फल की तरह से वहां पर पड़ी हुई थी, और ऐसा फ्रूट जिसे तुमने तो कभी भी नहीं छुआ। बच्ची वहां पर ऑपरेशन टेबल पर अनक्लेम्ड पड़ी हुई थी। नोबडी वांटेड टू टच इट। कोई भी उसे छूना नहीं चाहता था। एज इफ शी डिड नॉट बिलोंग टू एनीवन, एज इफ शी was an object of investigation in the laboratory. ऑटोप्सी रूम में जो सीन हमें दिखता है उसमें हमें नजर आता है that the child has lost her identity, her sense of human being. She is just an object of research and investigation. She has no voice, no life. Mother, I am the one you sent away when the doctor told you I would be a girl. The child repeats its complaint कि मदर, मैं वही हूँ जिसे तुमने अपने आप से दूर कर दिया जब डॉक्टर्स ने ये बताया कि मैं एक लड़की हूँ। I am the one you sent away when the doctor told you I would be a girl. Your second girl. कि तुम्हारी दूसरी लड़की, दूसरी बेटी। जब तुम्हें ये पता चला कि दूसरी बार भी तुम्हें बेटी ही होने वाली है, तब तुमने मुझे अपने आप से दूर कर दिया। The child is deeply saddened by her mother's consent to the termination of her pregnancy. Afterwards,
As soon as you could, you put on your grass green sari. Afterwards, कि मुझे मार डालने के बाद में, मेरी हत्या के बाद में, as soon as you could, जितनी जल्दी हो सके, you put on your grass green sari, कि तुमने अपनी खूबसूरत हरे रंग की साड़ी पहनी. The orange stems of Parijatak blossoms glistened in your hair, and you decorated your hair with Parijatak blossoms. बहुत खूबसूरत फूलों से तुमने अपने बालों को सजाया, खूबसूरत साड़ी पहनी और वो फूल तुम्हारे बालों में चमक रहे थे. Afterwards, everyone smiled. और उसके बाद में हर कोई मुस्कुरा रहा था. तुम मुस्कुरा रही थी क्योंकि तुम्हें दूसरी बेटी से छुटकारा मिला. डॉक्टर्स, नर्सेस सब मुस्कुरा रहे थे बिकॉज उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा. Everyone smiled. See the pain in these lines, in these words. Everyone smiled. और मैं वहाँ एक स्लाइस्ड पोमीग्रेनेट की तरह से पड़ी हुई थी. मुझे काटा जा रहा था, मुझे नापा जा रहा था. और इस सब के बाद में तुमने बहुत जल्दबाजी में फटाफट से अपनी साड़ी पहनी, अपने बाल सजाए. एंड एवरीवन स्माइल्ड. सभी खुश हो रहे थे. हियर द चाइल्ड also describes the expressions on the face of her mother after she learns of her being aborted. उसकी मदर के फेस के एक्सप्रेशंस जब उसे पता चलता है कि बच्ची अब अबॉर्ट हो चुकी है, उसे मार दिया गया है, तब उसे कितनी खुशी मिलती है. ये देखकर बच्ची बहुत ही पीड़ा महसूस करती है. The sense of relief of her mother adds through her agony. मदर की रिलीफ देखकर भी बच्ची बहुत ही निराश महसूस करती है, अनकेयर्ड फॉर, अनलव्ड महसूस करती है. यहाँ पर द पोइट कमेंट्स ऑन द इनह्यूमन नेचर ऑफ द सोसाइटी, जहाँ पर पैट्रियार्कल सोशल ऑर्डर को ही कंटिन्यू करने के लिए हम अजन्मे बच्चे को भी जो कि अपने बचाव के लिए कुछ भी प्रोटेस्ट नहीं कर पाता है, उसे ही किसी भी प्रकार से मार डालने की कोशिश करते हैं. But now I ask you to look for me, mother. अब यहाँ बच्ची कहती है, पर अब मैं तुमसे कहती हूँ माँ, to look for me, mother. मुझे ढूंढो तो सही. Look for me because I won't come to you in your dreams. मुझे ढूंढो तो सही क्योंकि मैं अब तुम्हारे सपनों में कभी भी नहीं आने वाली. तुम्हारे सपनों में कभी नहीं आऊंगी. तुमने तो मुझे देखा ही नहीं, मुझे छुआ ही नहीं. अगर सपने में आती भी हूं तब भी तुम कैसे पहचानोगी. यहाँ पर अपनी मदर के हार्ट को टच करने के लिए, उसकी कॉन्शियंस को झकझोरने के लिए ये बच्ची बार बार पेनफुल शब्दों में कहती है, लुक फॉर मी मदर बिकॉज आई वोंट कम टू यू इन योर ड्रीम्स. क्योंकि मैं तो तुम्हारे सपनों में कभी नहीं आऊंगी. लुक फॉर मी मदर, लुक, देखो माँ, मुझे ढूंढो, बिकॉज आई वॉन्ट बिकम अ फ्लावर. मैं एक फूल भी नहीं बन पाऊंगी. अगर तुम मुझे फूलों में भी ढूंढने की कोशिश करोगी तब भी तुम्हें नहीं मिलूंगी. आई वोंट टर्न इनटू अ बटरफ्लाई. मैं तितली भी नहीं बन पाऊंगी. तितली की तरह तितलियों में अगर मुझे खोजने की कोशिश करोगी तब भी तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगी. लुक फॉर मी मदर. एंड आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एनीवन्स सॉन्ग. मैं किसी के गीतों का हिस्सा भी नहीं बनूंगी. मतलब तुमने जो काम किया है मदर, मेरा तुमने पूरा अस्तित्व ही खत्म कर दिया. आई वोंट कम टू यू इन योर ड्रीम्स. तुम्हारे सपनों में कभी नहीं आऊंगी. Flower, butterfly, song, these are the beautiful things that we attach to little small children. छोटे छोटे बच्चों से जिन्हें हम अटैच करते हैं या सिमिलैरिटी स्थापित करते हैं कि फूलों जैसे बच्चे होते हैं, तितलियों जैसी बच्चियां होती हैं. एंड
लेकिन तुमने मुझे इनमें से कुछ भी नहीं बनने दिया है। आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ एनी वंस सॉन्ग। किसी के गीतों का हिस्सा भी मैं नहीं हूँ। The killed fetus tells the mother that now she would no longer come in her dreams as she no longer lives in her womb. और वो चैलेंज भी करती है अपनी मदर को टू लुक फॉर हर नाउ दैट शी डजंट टू लुक फॉर हर नाउ दैट शी डजंट एग्जिस्ट शी। और वो बच्ची चैलेंज भी करती है अपनी मदर को कि उसे ढूंढने की कोशिश करे। She interrogates the mother's conscience and asks her to face her cold-blooded self. She blames the mother for her murder. और बहुत ही दुख से तकलीफ से वो कहती है कि मैं I am I would no longer be a part of anyone's song, anyone's life, and anyone's memories. She won't be born and grow up like others because she has been deprived of life by her own mother. Look, mother, मुझे ढूंढो माँ, देखो, look for the place where you have sent me. उस जगह को तो ढूंढो जहां तुमने मुझे भेज दिया है. Look for the unspeakable. Unspeakable जिसे कहा नहीं जा सकता. उस अकथनीय बात के लिए, उस अकथनीय जगह जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, तुमने मुझे कहाँ भेज दिया है? जरा ढूंढो तो सही. For the place can never be described. क्योंकि जिस जगह तुमने मुझे भेजा है माँ, उसको कभी भी शब्दों में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता. Look for me, mother, because this is what you have done. यहाँ पर बच्ची बहुत ही साफ साफ शब्दों में कहती है, मुझे ढूंढो माँ, मुझे ढूंढो, क्योंकि दिस इज वॉट यू हैव डन, कि तुमने किया है ये. दिस इज वॉट, ये वही हुआ है जो तुमने किया, जो तुमने चाहा. यहाँ बच्ची साफ साफ शब्दों में कह रही है कि मेरी मृत्यु तुम्हारी ही वजह से हुई. तुम ही चाहती थी कि मैं जन्म ना लूं और मेरी मृत्यु हो जाए. लुक फॉर मी मदर बिकॉज दिस इज नॉट गॉड्स विल. मुझे ढूंढो तो सही माँ, बिकॉज दिस इज नॉट गॉड्स विल. मैं मर जाऊं ऐसा ईश्वर की इच्छा नहीं थी. भगवान ने मुझे इस धरती पर जन्म लेने के लिए भेजा था, लेकिन ये तुमने भगवान की इच्छा के विरुद्ध काम किया है. मुझे मरवाया है तुमने, मेरी हत्या की गई है. एंड दिस इज नॉट गॉड्स विल. इसे भगवान की मर्जी, ईश्वर की इच्छा नहीं कह सकते. ये तुम्हारी मर्जी थी, ये तुम्हारी इच्छा थी कि मुझे जन्म लेने से पहले ही मार डाला जाए. The unwanted girl child accuses her mother of sending her to the land of the dead, a land of no return, a land that cannot be described. She wants her mother to face the consequences of her act. She knows that it wasn't by God's will that she lost her life, but by the will of callous and merciless humans. Look for me, mother, because I smell of formaldehyde. मुझे ढूंढो तो सही माँ, क्योंकि मुझे क्यों ढूंढो? Because I smell of formaldehyde. Formaldehyde is a gas with no color and a strong smell, used by being mixed with water to preserve things in laboratory. बहुत ही तीखी स्मेल वाली एक गैस होती है और पानी के साथ इसे मिक्स करके हम लेबोरेटरीज में इसको रखते हैं कि कुछ चीज़ों को, डेड एनिमल्स वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए. तो बच्ची यही कह रही है कि जो लेबोरेटरी में से जो गंध आती है, वो गंध, वो स्मेल मेरे अंदर से आ रही है. तुम ढूंढने की कोशिश तो करो, शायद तुम्हें अपनी
जो गलती है या जो तुमने जो अपराध किया है उसका एहसास हो पाए। इसीलिए बच्ची बार बार अपनी मदर को कहती है, लुक फॉर मी, लुक फॉर मी। फॉर्मेल्डिहाइड की स्मेल मेरे शरीर से आ रही है, जो कि नहीं आनी चाहिए। मैं तुम्हारी बेटी थी और जिंदा थी, लेकिन अब मरने के बाद में मेरी बॉडी में से जो प्रिजर्वेटिव्स की स्मेल आती है, फॉर्मेल्डिहाइड जो गैस है उसकी स्मेल आती है, जिसमें मरी हुई चीजों को प्रिजर्व करने के लिए रखा जाता है। She repeats, I smell of formaldehyde, and still I wish you would look for me, mother. कि हालांकि मैं मर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे अंदर से जो गंध आ रही है फॉर्मेल्डिहाइड की है, और फॉर्मेल्डिहाइड डेड चीजों को प्रिजर्व करने के लिए यूज की जाती है। मतलब ये कंफर्म हो चुका है दैट आई एम डेड नाउ, एंड स्टिल, फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि तुम कभी मेरी खोज करो, मुझे ढूंढो, कि कभी तो ये रियलाइज करो कि तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ। On this note, the poem ends. The fetus has now become a preserved specimen in a laboratory. लेबोरेटरी में एक स्पेसिमन बन के रह गया है उस बच्ची का फीटस। Still, she wishes that her mother looks at her and face the consequences of her brutality. फिर भी ये बच्ची चाहती है कि माँ उसे ढूंढने की कोशिश करे, और जो क्रूरता उसके साथ की गई है, बच्ची के साथ की गई है, उसके जो भी परिणाम हैं, उन्हें देखने की, उन्हें फेस करने की कोशिश करे। This unborn girl child seeks justice for herself and everyone of her kind.